If you remember 2 weeks पिछले ago, सप्ताह I quoted from Isaiah मैंने यशाया 61 that really 61 describes से बात करी थी, the ministry of Jesus, and यीशु that's की what Jesus सेवकाई quoted के बारे when में he बात करी थी। started his ministry, to describe what it is that his ministry would be about. And that's really important because Jesus said that we would do the things यीशु ने that कहा he था कि was हमें वो सब doing. चीजें करनी चाहिए जो कि वो As करता है। a church, we represent the same things that Jesus did, we do in our church today. So it's really important for us to understand what हमारे it लिए is that काफी आवश्यक है Jesus कि हमें जाने कि did, or how हम he किस तरह defined यीशु की his ministry. So परमेश्वर की सेवकाई if कर I could सकें। just read that again. So Isaiah यशाया 61. 61, परमेश्वर यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दीनों का सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि टूटे मन वालों को बांधूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्नता के वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन का प्रचार करूं, और सब शोक करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों को राख के स्थान पर मुकुट, शोक के स्थान पर आनंद का तेल, और निराशा की आत्मा के स्थान पर स्तुति का वस्त्र प्रदान करूं। and a garment of praise instead of the spirit of despair. You क्या notice आपने ध्यान something दिया इस about पद में that लगभग कुछ passage भी that शारीरिक almost चंगाई none के of बारे it में नहीं है। relates to physical healing. I could probably say that इसमें none कुछ of it भी relates शारीरिक to चंगाई के बारे में नहीं physical लिखा है। healing. And that's not to say that इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु kind of शारीरिक shows चंगाई में that रुचि नहीं Jesus रखते didn't थे। believe in physical उनकी सेवकाई से healing, स्पष्ट है because कि वे लोगों को obvious शारीरिक रूप from से चंगा his करते ministry. थे। I mean, you can't read the Gospels without realizing that Jesus was very active in this in healing परमेश्वर हमेशा people से इच्छुक physically. थे लोगों को शारीरिक रूप से चंगा करने के लिए, It becomes obvious by his परंतु ministry उनकी that he सेवकाई से was यह not only active दृष्टित in होता है healing कि people ये केवल एक physically, बड़े चित्र का हिस्सा था। but that परमेश्वर की he इच्छा was थी कि हम interested संपूर्ण in हों, making people whole. हम संपूर्ण हों, Making people मन, whole in भावनाएं, mind, in आत्मा और emotions, संबंधों में in भी। spirit, in relationships, all of us. So from that context, it seems actually a little bit shallow to think that यदि हम इस Jesus संदर्भ में only केवल cared about शारीरिक physical चंगाई की healing. बात करें तो यह बहुत ही It सतही was होगा। much more about हम the केवल whole शरीर picture नहीं, of what God was हमारे trying to भीतर do बहुत और in कुछ our है। lives to make us whole. So, and this morning आज I'd like सुबह मैं to भीतरी चंगाई address के इस this whole व्यापक विषय पर really चर्चा करते हुए big picture चंगाई की of 3 inner healing. और श्रेणियों को And, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। I'm going to present 3 more categories of healing. And I'm sorry, I took और मैंने time for the questions. And so now I'm left to deal मैंने with काफी 3 समय लिया more प्रश्नों के लिए, तो अब मेरे categories of पास और healing in 3 this बाकी हैं। sermon. But थोड़ा मैंने समय लिया है। I मैं say 3 3 more आगे because the इसलिए कहता हूँ first क्योंकि is पहली है physical शारीरिक healing, चंगाई, and we already kind of dealt with और that हमने in इसके the बारे में first पहले ही बात करी है। message. दूसरा है The second is भावनात्मक emotional चंगाई। healing. So, emotional healing. At a really busy यीशु time की in सेवकाई के Jesus' एक अत्यंत व्यस्त ministry, समय we में read the हम story एक of a woman ऐसी with स्त्री a की very कहानी पढ़ते हैं जिससे personal एक problem. बहुत ही व्यक्तिगत समस्या The थी। nature of the उस शारीरिक physical समस्या ने उसे problem, I भीतर गहरी believe, भावनात्मक चोट पैदा caused कर दी थी। deep emotional trauma. So let's just read हम it. उसके बारे में Matthew पढ़ते हैं, chapter मरकुस 5, 5 का 25 से 28। starting at verse 25. एक बड़ी भीड़ उसके A पीछे large चली और उसे crowd घेर लिया। followed and वहाँ एक स्त्री pressed थी जो around 12 him. वर्षों से Jesus, रक्तस्राव that की is. बीमारी से And पीड़ित a थी। woman was there who had been उसने बहुत subject से to वैद्यों के हाथों bleeding for 12 बहुत दुख years. उठाया था She had और अपना suffered सब a कुछ great खर्च कर deal दिया था। under the care of many doctors फिर and भी वो had अच्छी spent होने के बजाय और all बिगड़ती she गई। had. Yet instead of getting better, she grew जब उसने worse. यीशु के विषय में When सुना she heard about तब वह Jesus, भीड़ में she पीछे से आकर came उसके up वस्त्र को छू behind गई, him क्योंकि in वह the सोचती थी crowd यदि and मैं touched उसके his clothes, वस्त्र ही because छू she लूं तो thought, मैं चंगी हो जाऊंगा। if I just touch his clothes, I will be healed. Now, even by the way that she यह दुख approached केवल Jesus शारीरिक नहीं था। should indicate to you that there's more जिस तरह से वो going यीशु के on पास here पहुंची, than इससे हमें just समझ में a आता है उसके physical जीवन में illness. She approaches दुख him, शारीरिक you know, दुख नहीं था, from behind. पर उससे कहीं अधिक भीतरी था।
पुराने नियम के धार्मिक व्यवस्था के अनुसार उसे अशुद्ध माना जाता था और उसे अलग थलग रहना पड़ता था। क्या किसी को याद है कि अलग थलग किया जाना कैसा महसूस होता है? अशुद्ध ठहराया जाना। किसी को पता है आइसोलेशन क्या है? कि आपको पता चले कि आप स्वच्छ नहीं हैं। क्या आपको पता याद है कि कैसा लगता है? तो हम अंदरूनी दुख के बारे में, अंदरूनी धक्के के बारे में बात कर रहे हैं। उस स्त्री ने 12 वर्षों तक अलगाव सहा, अस्पताल के अंदर और बाहर। इसके साथ साथ उसकी परिस्थिति ने उसकी आजीविका कमाने की क्षमता को भी लगभग समाप्त कर दिया था। और समाधान की खोज में उसने अपनी सारी जमा पूंजी भी खर्च कर दी थी। उसने अपनी आजीविका अपने इसका एक सुझाव। क्या आपने कभी किसी ने आप लोगों में से किसी ने भी अपनी आजीविका को खोया है कभी? ये एक मानसिक धक्का भी होता है। इन सब बातों ने उसके जीवन में गहरी निराशा भर दी। यह सब भावनात्मक आघात था। ये भावनात्मक आघात था। वो यीशु के पास आती है पीछे से, उसने सोचा कि कोई मुझे देखेगा नहीं। 29वें वचन में लिखा है, तुरंत उसका रक्तस्राव बंद हो गया और उसने अपने शरीर से अनुभव किया कि वो अपने कष्ट से मुक्त हो गई। वो ठीक हो गई रक्तस्राव से, और कुछ और हुआ। और उसी समय यीशु ने उसे समझ में आ गया कि वो अपने कष्ट से मुक्त हो गई है। उसी समय यीशु ने जान लिया कि उसके सामर्थ्य निकली है। वो भीड़ में मुड़कर पूछने लगे, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? चेलों ने उससे कहा, आप देखते हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ी है और फिर भी आप पूछते हैं किसने मुझे छुआ? परंतु यीशु यह देखने के लिए चारों ओर देखते रहे कि वह किसने किया। तब वह स्त्री जो जानती थी उसके साथ क्या हुआ है, डरते और कांपते हुए आई, उसके चरणों में गिर पड़ी और उसे सब सच बता दिया। जिस तरह की उसने कुछ गलत किया, वो डर के मारे बेचारी आई, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए थी। और इसलिए उसने परमेश्वर के कपड़े को छू दिया। हो सकता है तब वो ठीक नहीं हुई हो पूरी तरह, इसलिए उसको काफी डर लग रहा। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा और अपने कष्ट से मुक्त हो जा। अपने कष्ट से मुक्त हो जा। यीशु यहाँ केवल एक शारीरिक बीमारी से बात नहीं कर रहे थे। वे आज भी इसी प्रकार हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत अधिक भावनात्मक आघात है। परमेश्वर इस तरह से करते हैं, जैसे कि जब मैं इसी विषय के बारे में तैयारी कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे दिखाता है कि क्या हो रहा है चर्च में, कलीसिया में क्या हो रहा है पिछले हफ्तों में। पिछले 4-5 हफ्तों में 4-5 लोगों को मैंने जाना है कि वो भावनात्मक आघात को जान पाए। टूटापन जब जीवन की परिस्थिति आपको तोड़ देती है। हम भावनाओं को बहुत हल्के में लेते हैं। लोग कहते हैं, जब जीवन तुम्हें नींबू दे तो नींबू पानी बना लो। नहीं, कहना आसान है लेकिन करना नहीं। जो तुम्हें नहीं मार सकता वो तुम्हें और मजबूत बना देगा। सच में? केवल इच्छा शक्ति से मैं कर लूंगा। लाठी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, पर शब्द मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। यह तो सबसे ही तुच्छ है इसमें, ये सोचना। ये सच भी नहीं है।
शब्द ज्यादा कठिनाई देते हैं, ज्यादा दुख देते हैं। कई लोगों ने मुझे कई चीजें ऐसी बोली हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक उंगली, अगर मैं अपनी उंगली भूल जाता उसके बाद, और मैं जबकि पियानो बजाता हूँ, तो शारीरिक आघात उतने कष्ट नहीं देते जितने शाब्दिक आघात। जीवन की परिस्थितियां हमें कमजोर बना देती हैं, लोग टूटे हुए मन के साथ रह जाते हैं। यीशु कहते हैं कि वे टूटे मन वालों को बांधने के लिए भेजे गए हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप शांति से जा सकते हैं और अपने कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। आपको चंगाई की जरूरत है यहाँ पे। कटुता, बीते हुए अन्याय को बार बार मन में दोहराना, छोड़ ना पाना, चाहे वो घटना बहुत पुरानी क्यों ना हो। कटुता, तनावपूर्ण मित्रताओं, जो चीजें पहले हुई, काफी सालों पहले हुई, पर आपको ना भूल पाना उन चीजों को, यह है कटुता। कटुता तनावपूर्ण मित्रताओं, टूटे हुए विवाह और भावनात्मक दूरी को जन्म देती है। अब तक कोई मुझे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, अब कोई मुझे फिर कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, दूर रहो मुझसे। एक कड़वी जड़ घर में हृदय कर लेती है। मैं आपसे कहता हूँ, आप शांति से जा सकते हैं और अपने कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। आप उस कटुता से आप छूट सकते हैं, आप इस तनाव से आप छूट सकते हैं। लज्जा, यह भावना है कि आप अपने भीतर मूल रूप से, आपके भीतर की मूल रूप से कुछ गलत है, सिर्फ आपके लिए, कि आपके साथ कुछ तो गलत है, ये आप सोचते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो किसी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। वह इतना बुरा है कि किसी को उसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। यह अलगाव की ओर ले जाता है, हम खुद को अलग कर लेते हैं। लज्जा आपको अपने ही अवसरों और संबंधों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप अच्छी बात और अच्छे संबंधों के योग्य नहीं हैं। मैं योग्य नहीं हूँ, आप ऐसा सोचते हैं अपने हृदय में। अच्छे भावनाओं, अच्छे रिश्तों का आप योग्य नहीं है, यह है लज्जा। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप शांति से जा सकते हैं और अपने कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। दुख, शोक, ये उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने किसी को खो दिया है और कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। हम सभी लोगों को खोते हैं, पर कई लोग उससे उबर नहीं पाते, उस शौक से। परिवार और प्रियजन जो प्रभु के पास चले गए, एक ऐसा खालीपन छोड़ गए जिसे भरा नहीं जा सकता। कई बार आपके पास सवाल भी हो सकते हैं कि वो परमेश्वर के पास गए कि नहीं, पर ये शोक है और ये खालीपन हमारे जीवन में छोड़ देता है जिसे हम भर नहीं सकते। तो हानि के घाव भी चंगे हो सकते हैं, वे घाव भी चंगे हो सकते हैं। यीशु हमें विलाप के स्थान पर आनंद का तेल देने आए हैं। विलाप का तेल, विलाप के स्थान पर आनंद का तेल। आप भी आप शांति से जा सकते हैं और अपने कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। निराशा और हताशा, हमारी दुनिया निराशा की भाषा बोलती है और बहुत से मसीह उसके प्रभाव में आ गए हैं। क्या कैसे संभव है कि इतने लोग परमेश्वर की संतान है, फिर भी आप अपने जीवन को निराशा में जीते हैं? आप परमेश्वर की संतान है, फिर भी निराशा में कैसे आप जी सकते हैं? यीशु आज भी कहते हैं, बेटे मैं तुझे तेरे विश्वास में चंगा किया है, मैं
A garment of praise. That's what Jesus came यीशु to आपको do. To एक give us this garment महिमा का of कपड़ा देना praise चाहते हैं, instead of a spirit ना कि of दुख की despair. आत्मा। And so to you, तो इसलिए मैं I आपसे say कहता that हूँ, you can go बेटे in बेटी peace तेरे and विश्वास be ने तुझे free चंगा किया है, from this suffering of शांति से जा और despair अपने कष्ट से and मुक्त हो जा। hopelessness. Okay, so that's तो ये my था little मेरा introduction to emotional healing. एक परिचय भावनात्मक Moving right चंगाई के लिए। Is अगला है spiritual आत्मिक healing. चंगाई, Spiritual healing, which is something जो completely इससे एकदम अलग है। different. Have you क्या आपने ever कभी महसूस किया है felt like कि आपने you're मसीही not जीवन में progressing आगे in आप your नहीं बढ़ Christian रहे हैं? walk? I mean, ऐसा it's नहीं not कि like आप you don't समझते नहीं कि आप understand परमेश्वर की that you're a संतान child हैं, of God. You understand that आपके you're a और child of आपके God, पाप that your यीशु sins के have लहू के been बलिदान से forgiven क्षमा by किए जा the चुके हैं, blood sacrifice of फिर भी आप Jesus. But you आदतन पाप से संघर्ष struggle करते हैं, with habitual sin. Stuff that just keeps जो चीजें coming वापस आती back रहती हैं। again. And you may have at कभी times कभी आप इस बात पर विजय पा लेते हैं, found पर victory अगला सप्ताह आता over है और that फिर आप उसी habitual गढ़ sin. में फिर से गिर जाते हैं। But then wait a week or two, and it comes right back again. You fall for that stronghold आप फिर से in उसी your गढ़ में गिर life. जाते हैं। आप कलीसिया में आते You हैं come to church, और पाप के बारे में you संदेश listen सुनते to हैं, sermons, और and आपके मन में often केवल एक ही you आवाज interpret, गूंजती है, you know, दोष दोष sermons, दोष, you know, sermons about sin. क्योंकि Sin, आप sin, अपने sin, बारे sin. में And the way सच्चाई that you जानते interpret हैं, that is guilt, 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 guilt. क्योंकि Guilt. आप मसीह आदर्श के अनुसार जीते हुए प्रतीत Somehow नहीं you होते। feel, well, you know the truth about yourself, and you can't seem to measure up to the Christian ideal. You know, oh, I can't be like आप सोचते that. हैं कि हाँ I can't मैं be एक like the, you know, like he's preaching. I can't be like मैं the परमेश्वर के guidelines here in this book. द्वारा दी गई You know, I can't measure up to the Christian जानकारी ideal या without परमेश्वर की realizing आज्ञा को पूरी that तरह there नहीं is मान रहा no हूँ, Christian मैं एक ideal. आइडियल मसीही नहीं हूँ। There is no Christian ideal. क्या आप जानते हैं There कि is तथाकथित only मसीही आदर्श वास्तव में मसीह an स्वयं है? ideal Christ. It केवल is मसीह only ही Christ that is ideal. स्वयं We look to आदर्श Christ है। for our righteousness. क्या आप जानते हैं कि ये But you पुस्तक realize that this whole जिसके बारे topic में that हम I'm बात कर talking रहे हैं, about here is written इसको about काफी in detail. जानकारी से This struggle with लिखा गया है habitual परमेश्वर sin के वचन में। is described very clearly in Scripture. बाइबल में संघर्ष के बारे में And I'm विस्तार gonna से read बात करते just हैं जिससे one आप गुजर रहे passage हैं, that talks about this. And just so that you remember आप forever, हमेशा के लिए याद okay, रखें। that this is where you can read about this. रोमियो It's 7 का 14 Romans से chapter 15। 7 and 8. I mean the whole chapter 7 and the whole chapter 8. And so we don't have time to go over that right पूरा now. पूरा But how about I get you to अध्याय repeat it? 7वां, Say Romans chapter 7 and 8. रोमियो 7वां और 8वां अध्याय There you go. आपको याद रहना चाहिए। Remember now, okay, if you want to go आप back घर and जाकर read पढ़ेंगे इसके बारे में। about, this struggle with habitual sin. So शारीरिक this whole teaching here is पापों के for बारे में जो कि Christians. आदतन शारीरिक It's पाप। for Christians, okay? So Romans रोमियो chapter 7 7, का let's कुछ हम just read a आइए few हम कुछ verses of it. वचनों को पढ़ें। Chapter, verse 7 का 14 से 14. 15। We हम know जानते हैं कि that the व्यवस्था law, आत्मिक है, the sermons, you know, the law, scripture, we know that the law is पर मैं spiritual. शारीरिक हूँ, But I am unspiritual. पाप के हाथ Sold बिका as हुआ। a slave to sin. जो मैं करता I हूँ do not उसे नहीं understand समझता, what I do. क्योंकि जो मैं चाहता For हूँ what I want to do, वह नहीं करता, I do not do. परंतु जिससे बैर रखता But हूँ what I hate, वही करता हूँ। I do. देखा See the संघर्ष? struggle? Maybe the Apostle Paul was thinking, wait, maybe there's क्या something इसका wrong. अर्थ है कि मेरे भीतर कुछ गड़बड़ है? And the Apostle Paul हाँ। would say, yes, पौलुस there कहते is हैं हाँ, something यह एक wrong आत्मिक with you. बीमारी है। Okay, it's called spiritual आत्मिक बीमारी है। sickness. आइए हम आगे But बढ़ें। let's keep reading. 21वां वचन। 21. सो मैं So I व्यवस्था पाता find हूँ this कि law जब भलाई करना at चाहता work. हूँ Although I तो want बुराई to मेरे do आसपास good, उपस्थित रहती है, evil is just right there with me. क्योंकि मैं भीतरी For in मनुष्यत्व my inner से being I परमेश्वर की व्यवस्था delight से in प्रसन्न रहता हूँ, God's परंतु law. अपने I अंगों में want एक और that व्यवस्था को Christian ideal काम in करते my हुए देखता हूँ। life. I delight in God's law, but I see another law at work in जो me, मेरे मन की व्यवस्था से waging लड़ती है और war मुझे against पाप की the व्यवस्था law का of my बंधुआ बना mind लेती है and making me a prisoner of the law of sin at work within me. हाय मैं कैसा दीन मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Paul was saying about himself, who I'm pretty sure was a Christian. What a wretched man क्या कैसा मैं I दीन am, मनुष्य हूँ, who
मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्या शब्द यहाँ से जो आपको उठाना चाहिए पिछले वचन से, वो है बचाना। कौन मुझे बचा सकता है? कौन मुझे इस संघर्ष से छुड़ा सकता है? परमेश्वर मुझे इस आदतन पाप से छुड़ा सकता है। ये बिल्कुल इसे सामान्य मानकर स्वीकार करने के बजाय ये समझिए कि आदतन पाप के विरुद्ध आत्मिक संघर्ष से भी हमें चंगाई मिल सकती है। इस बात को मानने से कि नहीं ये तो सामान्य है, कि हम क्यों ना हम परमेश्वर के मुड़ जाएं और ये बोलें परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए, मुझे आत्मिक चंगाई दीजिए। 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे छुड़ाता है। ध्यान रखें कि यह पत्र विश्वासियों को लिखा गया था। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि ये विश्वासी होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में बुराई के विरुद्ध संघर्ष को पहचाना और समाधान क्रूस पर यीशु की विजय में पाया। आप रोमियो 7 पढ़ सकते हो। उसके बाद आप रोमियो 8वां अध्याय भी पढ़े, उसमें आपको उपाय मिलेगा आपकी समस्या का। 8 का 10 से 11। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवन है। और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करती है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है तुम्हारी नश्वर देह को भी जीवन देगा। आदतन पाप के संघर्ष से यह छुटकारा मैं इसे आत्मिक चंगाई कहता हूँ। और बहुत ही कम मसीही इस प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप और भी कार्य करना है। कई चीजें होती हैं, अपनी आदतों को बदलना, व्यवहार को बदलना, अपनी सोच को बदलना। एक 12 कदमों का कार्यक्रम सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। कभी-कभी हमें प्रार्थना करनी होती है और तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक उत्तर ना मिले, जब तक हमारे परमेश्वर के साथ चलने में एक नया मोड़, एक नई सफलता, एक नया आत्मिक बदलाहट ना मिल जाए। Okay, so that's my little introduction. तो ये था मेरा परिचय आत्मिक चंगाई के लिए। आखिरी है दुष्ट आत्मा के प्रभाव से चंगाई। आज सुबह अंत में इसके बारे में इन सब सारे परिचयों के बारे में बात करी। मैंने कुछ लोगों से बात करी जिन्होंने इसका महसूस किया चर्च में। पहले हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, मरकुस 5:1 से 10। झील के पार गिरसनियों के देश में पहुंचे। जब यीशु नाव से उतरे तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उनसे मिला। वो मनुष्य कब्रों में रहता था और अब उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे कई बार हाथ पैर में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई थी, पर वह जंजीरों को तोड़ देता और बेड़ियों को चकनाचूर कर देता था। कोई इतना बलवान न था कि उसे वश में कर सके। वह रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप से पत्थरों से काटता रहता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो वह दौड़कर उसके सामने गिर पड़ा, ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया,
मेरा नाम My लीजन है name is क्योंकि Legion. हम बहुत Of हैं। course, he's talking to the not the यीशु man, but उस दुष्ट आत्मा से बात कर talking रहे थे to the demonic or to the evil spirit. My name is Legion. और He उसने replied, बार-बार for we are विनती many. करने लगा कि उसे प्रदेश से And he बाहर ना begged भेजे। Jesus again and again not to send them out of the area. And this is kind of gives you a little peek into और the actual conversation that's going on. ये चरम सीमा पर ये Jesus बातचीत and आ this गई है demon, अभी। where Jesus is यीशु saying, ने कहा "Come बाहर out of निकलो this इस आदमी से। man." I cast you out. You know, I'm not sure if he said in the name और of मैं हो Jesus. because सकता है उन्होंने what ये नहीं he कहा did, यीशु के right? नाम से बाहर आ जा, क्योंकि खुद ही यीशु हैं। And but eventually अंततः यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं को cast निकाल out दिया। these demons who then drive a वे whole सुअरों के एक herd झुंड of में pigs प्रवेश कर गए और पूरा crazy, झुंड चट्टान से नीचे causing गिर them पड़ा। to run off a cliff. What a crazy क्या story. खतरनाक कहानी है। I mean, maybe हो some of you सकता है have आप read लोगों the ने story so often that now you कई know, बार ये take कहानी it को for पढ़ा होगा, इसलिए आप granted, इसको हल्के में लेते होंगे। you think that it's normal. This is not. This is like ये a, काफी ही whoa, गंभीर है, I was going to say over the top and more over the cliff, right? बहुत ही Crazy, खतरनाक है। crazy पूरे story. पहाड़ी से सारे सुअर एक साथ गिर गए। But from this इन और अन्य passage पंथों and से प्रतीत होता others है like it, we कि can जैसे develop a method अन्य प्रकार की for how चंगाइयों के लिए एक to विधि treat होती है, evil spirits वैसे ही that दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए that are involved in people's lives. And जिसे traditionally it's परंपरागत रूप called से भूत प्रेत exorcism. निकालना या एक्सोर्सिज्म कहा जाता है, के लिए भी After एक all of this आत्मिक was done, अधिकार by और the way, प्रक्रिया if you होती है। read, verse इसके बारे में हम 15, पढ़ते हैं when, मरकुस का 5:15। when they जब came यीशु to के पास Jesus, आया और उस मनुष्य को जिसमें townspeople, लीजन when they came to Jesus, नामक they दुष्ट saw the आत्माएं थीं, man who had been possessed by the बैठे हुए legion of कपड़े demons, पहने और sitting सही there, होश में देखा dressed तो वे डर गए and in his right mind, and they were afraid. I think that's the proper or the normal यही है, reaction. ये They're लोग afraid डरते of थे this इससे, guy, okay, because of all जो the कुछ इसके stuff साथ that हुआ had था। happened. And और कुछ लोगों के लिए, for some people, this whole area of demons or और कई लोगों demonology के लिए can be can make you afraid, and I think unfortunately that is very much because और of हो Hollywood सकता है कि and ये the भूतों के all बारे that, में right, that ये सब made चीजें us afraid. सुनकर आप डर जाते हैं, और We इसके have no कारण है reason to be हॉलीवुड, afraid क्योंकि उसने ऐसा of दर्शा। the spiritual, हमें of कोई the spirit world. हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। Remember the story from मुझे एक Michel विशेष Charbonneau. This is मिशेल Pierre's शॉर्बनो की कहानी याद है। okay. Louis, you know, Louis that does the जब वो आइवरी कोस्ट में गांव में थे, वे स्थानीय जादूगर के नियंत्रण में था। But so this is ये a काफी story सालों from पहले की many, बात many है, years ago, where they had gone जब वे to आइवरी some कोस्ट village के गांव में in थे, Ivory Coast. जो स्थानीय This जादूगर के village was नियंत्रण में very था। much controlled by the witch doctor of that वे एक village. झोपड़ी में And, सो रहे थे, they जब were वे passing अचानक through and they, इस एहसास से जगे कि they decided कोई to उपस्थिति stay खिड़की से there for आई, the night. And of course, और उनका they gave the best place to sleep, or उन्होंने the best hut. They gave to you know उन्होंने एक the, अच्छी जगह the foreigners, you know, the white people, गोरे लोगों को to- उन्होंने जगह दी, to, जो गांव वालों ने you know, Louise and मिशेल Michel शॉर्बनो को। Charbonneau. The hut happened to और belong ये to the witch ये doctor. झोपड़ी So they उस were डॉक्टर, sleeping there उस that जादूगर night, की, and during the night, और he रात को जब वो says झोपड़ी में सो रहे थे, जब अचानक इस एहसास से वे जागे कि उस उपस्थिति he में खिड़की felt से आई, that there was this evil और उनका spirit मुंह that पकड़ came लिया, through the window. क्योंकि मिशेल And प्रार्थना he शुरू was करने just वाले थे। about to start to pray when this जब इस evil इस spirit दुष्ट आत्मा ने आके अपना his hand, हाथ so to speak, उनके मुंह पर रख on दिए, his mouth, and he found और that उनको he wasn't समझ में आया able कि to pray वो for a बात little while until finally he वो was प्रार्थना नहीं released कर of पा it, रहे थे, and he was, you know, और able उसके बाद to यीशु say का the नाम वो name of बोल पाए, Jesus, and, और you know, उसके that- बाद that वो was दुष्ट आत्मा चली गई। You अक्सर know हम what? दुष्ट This is आत्माओं के often the कार्यों way के we बारे hear में दूसरे about the देशों work की of demons कहानियां सुनते हैं। from other countries. But often या not नहीं, क्या from आपने right कभी here, इस not बारे में सोचा है? Canada, not the US. You ever wonder why? I'd just like to मैं say इसलिए बताना that चाहूंगा, demons are not only evil, but they're दुष्ट also आत्माएं intelligent. बुरी That नहीं there's है, a वो method काफी here समझदार भी in होती हैं। how they're working, and you need to understand that there's a method in how उनके they जीवन work वो in भी our एक lives प्रक्रिया as से हमारे well. जीवन में कार्य करती है। Let me read to you C.S. what लुइस C.S. अपनी Lewis पुस्तक wrote many years द ago स्क्रू in a टेप book लेटर्स called The Screw में Tape Letters. And if you're interested in reading that book, I मैं आपको highly suggest that you read it. It gives you प्रोत्साहित a करूंगा good insight into इस this whole विषय के बारे area में। of आप demonology. काफी जानकारी की So बात करती है। Screwtape is एक वरिष्ठ a दुष्ट आत्मा senior को demon, कनिष्ठ दुष्ट and आत्मा he को is teaching a मनुष्यों के साथ junior व्यवहार demon how करना to सिखाते हुए act दिखाते हैं। around humans. Okay, and this is what
he says. फिलहाल हमारी Our नीति है policy कि हम स्वयं for को the moment छिपाए is रखें। to conceal ourselves. ये हमेशा ऐसा नहीं Of था। course, this has not always हम been एक कठिन so. दुविधा में हैं। We are really faced with जब a मनुष्य cruel dilemma. हमारे अस्तित्व पर When the विश्वास नहीं humans करते disbelieve तो हम in सीधे our आतंक के existence, सुखद परिणाम we lose all the खो pleasing देते हैं results of और कोई direct जादूगर नहीं बन terrorism, पाते, and we बना make पाते। no magicians or witch doctors. दूसरी ओर जब वे On हम the पर other विश्वास hand, करते हैं और हम when they believe उन्हें in भौतिकवादी this, और we संशयवादी cannot नहीं बना make सकते, them materialists and मुझे नहीं लगता skeptics, which we are. जो हम Materialists हैं and skeptics. भौतिकवादी और संशयवादी। I do मुझे not नहीं think लगता you will कि have much तुम्हें रोगी difficulty को अधिकार in में keeping the रखने में patient अधिक कठिनाई in the होगी। dark. The patient being the human, the person that this आधुनिक demon was कल्पना में being शैतान trained to work अधिकतर on, हास्य right? पात्र है। So I don't think you'll have much difficulty in keeping the patient in the dark. The fact that devils आधुनिक कल्पना में are शैतान predominantly comic अधिकतर figures हास्य in पात्र the है, modern imagination यह तुम्हारी will सहायता help you. करेगा। यदि If उसके मन any में तुम्हारे faint अस्तित्व का हल्का भी suspicion of your संदेह existence उत्पन्न हो begins to तो उसे लाल arise कपड़े in his पहने mind, किसी suggest to him हास्यास्पद a चित्र की picture कल्पना of सुझाओ something in red tights और उससे विश्वास दिलाओ and कि persuade जब वह him उस that चित्र since पर he cannot believe in विश्वास नहीं that, करता वह he तुम पर विश्वास therefore नहीं कर cannot सकता। believe in you. ये Okay, काफी that was पहले written a लिखा long गया है time ago, और okay? ये It आज भी still applies for us today. आज भी लागू It होता has है। become ये evident मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि to दुष्ट me आत्मा को that जितनी demons स्वतंत्र हम have been समझते हैं given उससे कई freedom अधिक लोगों के to जीवन में work काम करने in की the अनुमति मिल गई lives है। of many more people than we think. इस Francis क्षेत्र में Knott, that I 40 mentioned वर्षों की last सेवकाई week, के बाद फ्रांसिस मैकनट says that after ने अनुमान 40 लगाया कि years of चंगाई के ministry विषय में in this उनके area, प्रवचन सुनने वाली एक सामान्य that भीड़ a में typical crowd coming to hear him speak about healing, that 3 में से one एक between व्यक्ति दुष्ट one आत्माओं से out of- प्रभावित होता one है। out of 3 people are affected by demonic spirits. One 3 out में of से 3. एक। And maybe you're thinking, well, maybe the crowds that were going to hear him speak about healing are different than the crowd और this आपको morning. ऐसा That लग रहा may हो कि be. जो That may be. चंगाई के बारे में लोग जो But, demons are सुन much रहे more हैं और जो उनके active बारे में बात करने in our गए हैं lives वो अलग than, लोग होंगे जो we कि often हमारे think. मध्य में। And you know, we have this theology ये that सही gets है, in the लेकिन way, this theology, this insistence that demons can't influence Christians. And by the way, that has been proven wrong in just the short years that I have been leading this church in at least three occasions. इसलिए स्पष्ट हो गया कि दुष्ट आत्मा को जितनी स्वतंत्रता हम समझते हैं उससे कई अधिक लोगों के जीवन में स्वयं काम करने की अनुमति मिल गई है। So it's not true that demons cannot परमेश्वर संता जो आत्मा से भरी हुई और अपने हृदय में मन में तैयार है उसके भीतर वास करने परमेश्वर के आत्मा के कारण दुष्ट आत्माओं पर अधिक आत्मिक अधिकार रखती है। So let's just agree that demons can have influence on people. और दुष्ट आत्माएं लोगों में cause infirmities. लोगों को प्रभावित करती है, उनको डराती हैं, And these demons उनको cause anger उनमें and गुस्सा lust लाती and हैं, all sorts of वासना, spiritual बीमारियां और chaos. अनेक प्रकार के And आत्मिक so if you अराजकता have उत्पन्न कर सकती हैं। spiritual chaos going on in your life, it's like, whoa, अगर आप where अपने did that जीवन में come भी from? आत्मिक अराजकता हो रही है तो आप सोच सकते हैं ये कहाँ से आई Ask है। yourself some questions and begin to pray अपने in जीवन में that आप संवाल direction. करिए Because a और child of प्रार्थना करिए God परमेश्वर who से। is filled with the परमेश्वर Holy की Spirit संतान जो and पवित्र आत्मा से prepared भरी हुई है in और their अपने hearts हृदय and और their मन में minds तैयार has है, उसके भीतर spiritual वास करने वाले authority परमेश्वर के over आत्मा के कारण demons. दुष्ट आत्मा पर And आत्मिक they अधिकार have है। authority over these demons by virtue of the Spirit of God within them. Amen. पहला यूहन्ना 1 4 John का chapter 4 4 verse जो 4 तुम में says, है वह "Greater is उससे he बड़ा है जो who संसार is में है। in you than he who is in the world." And this, if you look at 1 John हम chapter यीशु 4, के नाम specifically talking में about इन the दुष्ट आत्माओं को influence of निकाल demons. जाने की आज्ञा दे सकते हैं। And so there's no question that यहाँ a पे कोई child सवाल of नहीं है, God यीशु मसीह filled with the Spirit का can बच्चा have authority over demonic oppression दुष्ट of any आत्माओं kind. के प्रभाव से We वो can demand that these के ऊपर evil अधिकार spirits रखता है be उसको cast कुचल देने के out लिए यीशु in मसीह the के name नाम of से। Jesus. Jesus said that his यीशु ने कहा उनकी ministry सेवकाई का would be उद्देश्य about बंदियों को freedom स्वतंत्रता और for कैदियों को captives and अंधकार से release छुटकारा देना है। from darkness for the prisoners. That's what I read at the beginning, right? वो इसी की ओर संकेत कर Exactly रहे what थे this is talking और about. हमने यीशु की Freedom सेवकाई from का demonic प्रतिनिधित्व हम oppression. यीशु की सेवकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। Okay, so that was the third type of और ये थी healing that I तीसरी wanted to चंगाई talk जिसके बारे में about बात this करना morning. चाहता हूँ। Now comes the altar अब time. वेदी का समय आ गया है। Because we need to now, I know that the मुझे Holy पता है Spirit has पवित्र already, आत्मा been ने working. आपको टटोल दिया है
in this service. I felt it again during मुझे the गानों song के service. समय भी लगा You know, let your praise arise. महिमा Let your ऊपर उठे। praise, you know, as we were singing, जब हम about the परमेश्वर के authority अधिकार of के बारे में Christ बात in करते हैं our हमारे जीवन lives. में, You know, परमेश्वर Jesus has हमसे already been बात कर ही speaking. रहे हैं। The Holy Spirit has already been speaking to you. परमेश्वर हो Maybe सकता है आपको showing दिखा रहे you, हो। I've mentioned so many मैंने different types विभिन्न of trauma, तरह so के many आघातों के बारे different में बात types करी। of healing that is विभिन्न available to चंगाई हमारे जीवन में us उपलब्ध है। as the body of Christ. I मैं want आपको to give you an opportunity to receive आपको एक that उपाय healing. देना चाहता हूँ। आपको एक So before I give a few guidelines, I'm just going to invite those who मैं उन are लोगों going को to आगे pray this आगे morning बुलाना at the चाहूँगा जो altar to come forward. हमारे Lord, स्टाफ हैं staff, और जो लोग प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, those who pray with us जो on वेंसडे Wednesday नाइट night. में आते You हैं। know who you are. Just आइए आगे make आइए yourself ready. Come on out. और प्रार्थना to the करने front. के लिए हमारी And I want सहायता to करिए। review और मैं method, प्रक्रिया okay, के बारे में बात करना for चाहूँगा। these different types of healing. And you can find these slides that you're going to see on the आप ये on the स्लाइड्स दे projector. सकते हैं प्रोजेक्टर में। You can find them on आपको the ऐप में भी ये if you स्लाइड्स like. मिलेंगी। So you just go under prayer and आप then प्रेयर में आप जा सकते हैं। request for this week and you'll see इस that हफ्ते this, की these slides are. Do you have the first slide? If you could put that on. इस of हफ्ते के physical आग्रह healing. So the या इस हफ्ते की instructions there कामनाएं। are clear. If अगर anyone among you आप में से कोई भी is मध्य sick, में कोई let them call the बीमार है elders तो of the church to pray over them and anoint अपने them with अपनी oil. कलीसिया By the के way, लोगों the को oil's right के there, Mark. If you want to take charge of that, अपनी just कलीसिया press it के over. वयस्क बड़े लोगों को बुलाए Anoint them with और oil in the name of the Lord, and the prayer उनके offered हाथों से in faith तेल will लगवाए। make the sick person well. The Lord will raise them up if they परमे- have sinned. They परमेश्वर will be उनको forgiven. Therefore, confess your चंगाई sins to each देगा। other and इसलिए pray for each other so that you अपने may पापों का be अंगीकार healed. करते हुए एक दूसरे के लिए Prayer प्रार्थना of the करें, righteous person is क्योंकि एक powerful आत्मिक and व्यक्ति की effective. प्रार्थना Just note, काफी and I already शक्तिशाली और talked about काफी this, the प्रभावशाली connection है। between confession, पहला है confession अपने of sin and healing. There's a connection there. एक रिश्ता है between those. अपने पापों का अंगीकार करना और चंगाई में, Secondly, और for emotional भावनात्मक healing, चंगाई के लिए identify भावनाओं को the पहचाने। emotion. For some of हो you, सकता this है आप might लोगों take में से some किसी time, कई लोगों के लिए इसमें because समय we have लगे। a tendency to हमारे sweep लिए that under the rug. हमारे में कई लोगों के साथ ऐसा है कि हम बोलेंगे ठीक है हम बाद में सोचेंगे, अभी हम इसको चटाई के नीचे डाल देते हैं। Grief, despair, hopelessness. What क्या is है the भावना emotion? भावना अगर आप ये And कर if you सकें, can do that, try to describe what you और आप believe caused that ये emotion. ये बताने की कोशिश करें कि किसके कारण ये हुआ, What trauma? What क्या crisis? घात लगा आपको, What unforgiveness? क्या Neglect, criticism, abandonment. बहुत लंबी Long लिस्ट है। list of things. And शायद maybe आपको you अभी don't याद ना आए, recognize this right away. This is some work maybe हो that you सकता है need आपके to do जीवन in में your आपको own कुछ कार्य heart करना पड़े and mind to describe कि आप where you believe कहाँ this से comes from, this emotion, and then commit that event. और Commit उस that उस event उस to घटना को Jesus. यीशु के Seek सम्मुख सौंपे, in your heart and your mind to touch the यीशु के garment of Jesus. वस्त्र को Ask छू लें, for उसकी his चंगाई healing को, उसकी and his शांति को peace over उस that घटना आपके situation. ऊपर प्रभावशाली करें। Ask to be freed from this emotional suffering. अगला है Next, आत्मिक चंगाई। spiritual healing. At least the first point is pretty easy for most people. पहले उस पाप को Identify पहचाने जो the आपको sin बांध रहा है, that's holding you back. Identify उसका it. नाम लें, उसे स्वीकार Don't करें, just identify it, name it, confess it. Because you want to be able to come क्योंकि back आपको to इसी this क्षण में आता moment. है। If this is the moment, here, now, अगर this आपको morning, इसी क्षण में आना है तो you need to आपको be able to point उस back to घटना को that याद moment करना and है। say, when the devil जब tries to जब accuse you शैतान again, मुझे to remind him, उकसाता है, no, no, मुझे no, दोषी ठहराता है, नहीं I नहीं नहीं, confess मैं this sin before God. मैं He अपने forgave पापों का me. अंगीकार करता हूँ, You परमेश्वर ने need to मुझे point क्षमा back किया to है, this time. So name it, confess उसका it. नाम लीजिए, उसे स्वीकार करें। दूसरा, Number two, उस पाप का renounce त्याग करें। that sin. यीशु मसीह के In the name नाम of से मैं Jesus, उस I पाप को त्याग करता I हूँ। renounce that sin and the hold यीशु के that नाम से it मैं इस has पाप और had के in मेरे my जीवन life. के पर प्रभाव को मैं त्याग करता हूँ। And then you proclaim यीशु the के lordship प्रभुत्व की of घोषणा Jesus. करें। हे प्रभु Jesus, यीशु, I मैं ask you आपसे to be प्रार्थना Lord करता हूँ कि over आप मेरे every जीवन के part हर of my क्षेत्र life, के even प्रभु that बने, part. Be the Lord. मेरे जीवन of के my life. प्रभु बने। और And अंत में finally ask पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। that God would प्रार्थना करें कि restore परमेश्वर आपके joy उद्धार का of your आनंद पुनः salvation. स्थापित करे। That's what happens. Being filled with the Spirit. परमेश्वर Lord, give मुझे me the joy of your आपके salvation. उद्धार की And खुशी finally, दीजिए।
for deliverance from भीतरी demonic चंगाई केवल एक influences. विचार नहीं है। In the presence of the Holy Spirit, a demon यीशु will मसीह की manifest. मध्य में, These things are यीशु deep मसीह की and hidden उपस्थिति में sometimes. दुष्ट We आत्माएं भी खुद को control that. We allow दिखा देती हैं, the work of a सामने आ demon जाती to हैं। continue in our lives, but by the यीशु power मसीह of की the Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा those things वे can be revealed. दुष्ट आत्माएं Sometimes, सामने आ because this सकती is हैं, what Jesus did, आंतरिक it can be effective to आंतरिक demand पाप the बाहर आ name सकते हैं। of that demon. Because by the name you can नाम maybe से हम figure जान out सकते हैं, why is that demon there? How did that demon get into हो your सकता है life in कि the first आप place? जान पाएं कि वो कैसे आपके जीवन में आ गया, और फिर उसको बाहर निकालना। Cast out the demon power दुष्ट आत्मा by the power of the Holy Spirit and the को authority of the blood. यीशु के नाम से और यीशु के लहू से बाहर निकालें। Deliverance from demonic influences. Well, that's it. This ये is आपके लिए available उपलब्ध है। to you. It's not these ये people लोग only represent. सिर्फ दर्शाते हैं They represent यीशु के अंग body को। of Christ. They represent what ये our हमारा church चर्च believes. The किस पे विश्वास ministry of करता है? Jesus. यीशु पे। In this case, यहाँ पर faith is विश्वास coming विश्वास forward है and कि asking, I हम need आगे आए और हम healing बोले from हमें this. हमें चंगाई चाहिए। यह है विश्वास आपका। And with the और इस prayer of प्रार्थना, faith, we are विश्वास की believing प्रार्थना that से God will bring कि healing, परमेश्वर inner healing. चंगाई लाएगा, भीतर आंतरिक चंगाई Why लाएगा। don't you stand together? We're going to sing a song. आइए हम गाना गाएंगे and, और eventually उसके we'll बाद kind हम of end the service. सभा को अंत But करेंगे। I'm inviting you to मैं come आपसे आग्रह forward, करता हूँ कि आप please, आगे आएं, प्रार्थना के लिए आगे आएं। to come forward and चंगाई ask के लिए for प्रार्थना healing करें। this morning. Amen.